Hello everyone. Let's raise our or enlighten our knowledge with some new topics. Today's topic is maps. Maps. It's a bit common topic. We all know what is a map, right? But due to the digitalization, we all have Google Maps in our phone, and we don't know what are the types of map, what are the qualities of map, what are the things which are important in the map, right? What are the components of the map, the basic components of the map. So today we are going to discuss what is a map, what are the types of map, what are the basic components of map. So let's begin with it. Maps. Maps is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या होता है? मैप एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन मीन्स जैसा अर्थ दिखता है ना, एग्जैक्टली वैसा हम एक पेपर के ऊपर बनाते हैं, राइट? और वो पेपर के ऊपर जो बनाते हैं उसको हम एक स्केल से, मतलब एक स्केल, बेसिक स्केल, मतलब हम रेशियो लेते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे इतनी बड़ी है, फाइन, और तो हमको इसको यहाँ पे कितने उस अकॉर्डिंग पे बनाना है कि अगर हम उसको मेजर भी करें ना दोनों से, तो उनका रेशियो सही सेम आना चाहिए। तो वो होता है हमारा स्केल, फाइन। तो हम उस चीज़ को रख के हम मैप ड्रॉ करते हैं एक बेसिक एक पेपर के ऊपर, राइट? पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर, जिसके ऊपर, तो वो हमारा एक होता है मैप, फाइन। एंड व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और हम बहुत सारे ऐसे मैप अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एटलस। आप सबको पता है, हम सबके पास एक एटलस होता है, राइट? उस एटलस में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैप्स होते हैं। हमारे पास वर्ल्ड मैप होता है, हमारे पास इंडियन मैप होता है, हमारे पास वर्ल्ड के बेसिक एशियन मैप, देन उसके बाद अफ्रीकन मैप, सारे मैप्स उसके अंदर होते हैं। और इंडिया के भी, फिर इंडिया इन मैप ऑफ इंडिया वी फाइंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, राइट? लाइक वी हैव नॉर्थ इंडियन मैप डिफरेंट, देन वी हैव अ साउथ इंडियन मैप, देन वी हैव अ ईस्ट और वेस्ट इंडियन मैप, देन वी हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रेट मैप, एंड इन दोज मैप ऑल्सो वी फाइंड सर्टन थर्मल मैप्स, सर्टन पॉलिटिकल मैप्स, physical maps. So what are all these components? What are the physical map, what are the political map, and what are the thermal maps, right? And it is impossible to flatten a round shape completely, means it is quite impossible that जो हमारा अर्थ है वो एक राउंड है, राइट? हमको मालूम है हमारा अर्थ कैसा दिखता है, हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने उसको पढ़ा है कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है। तो वो ऐसे कैसा एक सर्कल है, उस सर्कल को आप, बहुत इम्पॉसिबल है कि आप एक पूरे ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर दो। बट हाँ, हमने जितना हम उसको बना सकते हैं हम उसको बनाने की कोशिश की है, फाइन। बट वी कांट ड्रॉ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बट वी कैन ड्रॉ एट 99% व्हाट इट इज़, फाइन। सो वी आर ट्राइंग फॉर, वी आर डूइंग इट। सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज the first is our physical map. As we have seen over here, right, that we have three types of map: the physical, the political, and the thermal. These are the types of map: the physical, political, and the thermal. These are our basic types of map. So we have read about it. Now let's go through its bit theory, that what is this types of map. The first one is this map you find over here is the physical map, and the map you find over here is the political map. So let's say the map showing the natural features of the earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean, etc. are called physical or the relief map. तो जो मैप उनको फिजिकल फीचर्स शो करता है, मीन्स उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको नेचर से मिले हैं, उस मैप को हम बोलते हैं फिजिकल मैप। जैसे आप फर्स्ट वाले मैप में आप देख पा रहे होंगे that we have Himalayas, we have all the basic rivers, the rivers which are flowing from their own directions, right? We have plains mentioned over there, we have plateaus mentioned over there, we have mountain ranges like Vidyan, then Aravallis, everything is mentioned in over there, Western Ghats, Eastern Ghats, which all the natural features which are given by us to nature are mentioned in the physical map. This is the physical characteristics of the map. Then the next map next to it, that is a political map. The political map, the map showing the towns, villages in the different countries and states of the world with their boundaries are called political map. So वो मैप्स जो हमारे जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, मीन्स हमारे सारे उसके अंदर टाउन्स मैंशनड होंगे, विलेजेस होंगे, सिटीज़ होंगे। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो होता है पॉलिटिकल मैप। बट व्हेन इट कम्स टू फॉर द बेटर एजुकेशन, हम अच्छे एजुकेशन के लिए हम ट्राई करते हैं, तो उसमें जब हमको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होता है, हमको रिवर्स, हम हिमालयस,
इन इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन एट दैट टाइम वी गो फॉर द फिजिकल मैप। बट बेसिकली जब हम हमारा गूगल मैप यूज़ करते हैं तो हम उसमें फिजिकल मैप नहीं देखते हैं, हम उसके अंदर हमारा पॉलिटिकल मैप देखते हैं। हमको सिर्फ हमारा पाथवे चाहिए होता है, हमको टाउन सिटीज़ के नाम, टाउन्स के नाम हम उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो दैट इज़ अ पॉलिटिकल मैप। सो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल मैप एंड द पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप हमको नेचुरल फीचर्स बताते हैं और पॉलिटिकल मैप हमको बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड द टाउन, सिटीज़ एंड द विलेजेस ये मेंशन करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द map. What are the types? Last type of the map, that is the thermal map. So you can find something different pictures of the map, right? तो ये हमको कुछ अलग दिख रहा होगा कि ये क्या है, right? एक में पूरा रेड हो रहा है, एक में येलो है, एक में ग्रीन रेड हो रहा है। तो what are these map? These are the types of map. Fine. So you can see over here the map with the red color in it is the Indian major electric generation plants. Fine. जो वो मैप वो शो कर रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं। जनरेटर्स जो प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये जो मैप है रेड वाला जिसमें रेड रेड आपको सब दिख रहा है, दिस मैप शोज द इन मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको नीदर आपको फिजिकल मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कोई मतलब होता है कि लाइक मतलब हम कह रहे हैं कि हमको लाइक ऐसा कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कोई मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे माउंटेन्स कहाँ हैं, रेंजेस कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, हमको उससे कोई वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हमारे पास ना ये मैटर करता है कि कौन सा स्टेट क्या है। हमारे पास इसमें ये मैटर करता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टफ़ को लेंगे कि यहाँ पे रेनफॉल, अगर आप देखोगे तो इसमें हमने ये जो येलो वाला मैप है ये हमारा एवरेज रेनफॉल का है। फाइन, इसमें ये सॉरी एनुअल टेम्परेचर का है कि इसमें कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर स्टफ़ को लेते हैं। फाइन, एक पर्टिकुलर क्वालिटी को रेस करेंगे, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग पूरे मैप को ड्रॉ कर देंगे कि इस स्टेट में ये ज़्यादा है, इस स्टेट में ये कम है। तो इससे हमको आइडिया होता है कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ कितनी है। फाइन, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर जैसे हम विंड स्पीड देखते हैं, ये ग्रीन वाला मैप जो है ये विंड स्पीड का है। फाइन, जिसमें आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये हमारा विंड स्पीड का है। यहाँ पे जो हमने जितना पोर्शन ग्रीन है यहाँ पे आपको उसके हिसाब से जितना ग्रीन है मतलब वहाँ पे कम विंड्स है, जितना रेड है वहाँ पे हाई विंड्स है। तो ये हमारा होता है थर्मल मैप। यहाँ पे हम नेचर्स की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेते हैं या फिर हम नेचर में ह्यूमन मेड क्वालिटी को लेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग पूरा मैप में ड्रॉ करेंगे कि किस जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। अगर हम दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको टेम्परेचर से मतलब है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस मैप को ड्रॉ करेंगे कि इस स्ट्रीट में इतना टेम्परेचर, इस रीजन के बाद इतना आ जाता है, इस रीजन में इतना टेम्परेचर होता है। फाइन, और अगर हम विंड स्पीड पे लेंगे तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल मैप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। वॉट एवर द स्पेसिफिक डाटा इज वी कैन ड्रॉ on that specific data our personal map. Fine, but that should be a constant data, means एक पर्टिकुलर स्टफ का ही होना चाहिए वो, कि ऐसा नहीं कि विंड और सबका मिक्स कर दें। हमको एक पर्टिकुलर स्टफ के ऊपर थर्मल मैप बनाना ज़्यादा ईजी होता है। फाइन, the suitable titles are given on the basis of the information provided in this map. मीन्स एक suitable टाइटल दिया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उस मैप में प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने हमारा रेड मैप में देखा, द रेड मैप प्रोवाइड्स द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स। मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम देख रहे हैं। द येलो मैप, द फर्स्ट वन, इज प्रोवाइड द एनुअल टेम्परेचर ऑफ द मैप। एनुअल टेम्परेचर मीन्स कि एनुअल टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कितना वेरी कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज द विंड स्पीड, कि कौन कौन से स्ट्रीट्स में कितनी विंड स्पीड होती है, कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, कहाँ पे कम हो जाती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर हमको इन फ्यूचर कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइक हम विंड मिल्स प्लान कर रहे हैं कि हमको विंड मिल्स लगानी, तो वो जो विंड मिल्स हम प्लान कर रहे हैं, विंड मिल्स राइट, उनको हम अगर प्लान कर रहे हैं तो जहाँ पे ज़्यादा हवा होगी वहाँ पे विंड मिल लगाना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी गिव देम द सुटेबल टाइटल्स। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो हियर आर द नाउ टिल नाउ वी हैव डन विद द मैप्स, व्हाट एक्चुअली द बेसिक मीनिंग ऑफ मैप, मैप होता क्या है। देन वी आर डन विद द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप, that what are the various types of map. We have a physical map, we have a political map, we have a thermal map. Now we are above for the components of the map. What are the basic components, what are the basic things which are required in a map. Fine, so with this let's start with the basic components of the map. We have three basic components of the map, that is the distance, direction and the symbol. Fine, so let's start with the distance. So distance, so distance is calculated as I told in our first slide.
इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट कि डिस्टेंस जो होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, वी मेक द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, मीन्स हम रेशियो एग्जैक्ट लेते हैं। हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, हम अर्थ इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते, बट हम उसका एक छोटा प्रोपोर्शन लेंगे, उस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं, हम उस प्रोपोर्शन से हम डिस्टेंस, और उस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं स्केल। फाइन, यू कैन फाइंड द फर्स्ट पिक्चर ऑन आवर स्लाइड, दैट इज पिक्चर ऑफ अ स्केल। आपने यूजुअली मैप्स में जो हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलती है उसके लिए जो मार्केट से मैप लेके आते हैं उसमें भी स्केल होता है, या आइदर हमारे पास एटलस है या कोई मैप भी होता है तो वहाँ पे भी स्केल वर्क करता है। आइदर अगर आप गूगल मैप भी ओपन करेंगे ना, जब उसको जूम इन जूम आउट करोगे तो नीचे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे आपको वहाँ पे स्केल उसका ऐसे वेरी ऐसे जैसे छोटे छोटे से जो आपने फर्स्ट मैप में आप देख रहे हो ऐसे बॉक्सेस कम होते हैं बढ़ते हैं, राइट। So those are the variations that the Google Map is automatically adjusting their scales according to the size, the size of the map, which are how much you are zoom in and how much the map is zoom out. So according to the Google Maps is adjusting their slides. So that is a scale. So the maps are drawn which reduces the entire world or a part of it and to fit on a sheet paper. We can say the maps are drawn to reduce the scale, but the reduction is done with very careful so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance or a paper representation or a large distance on a ground. Therefore the scale is chosen for the purpose. जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बताया कि प्रोपोर्शन हमको लेना पड़ता है, जितना प्रोपोर्शन हमारे पास जो अर्थ का है हम उसका एक छोटा प्रोपोर्शन हम उसके अंदर यहाँ पे मैप में रखेंगे। फाइन, उस प्रोपोर्शन को हम कैलकुलेट करते हैं स्केल से। लाइक जैसे अब आप पहले वाले पिक्चर के अंदर देख रहे हो तो यहाँ नीचे की साइड ऑन द बॉटम ऑफ द पिक्चर यू कैन फाइंड ओवर हियर एग्जाम्पल स्केल। फाइन, सो यू कैन फाइंड हियर दैट द 1 इंच इज इक्वल्स टू 24,000 इंचेस और 2,000 फीट। मीन्स अगर आप मैप में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपने 1 इंच रखा, राइट, मैप में आपने अपना स्केल रखा, स्केल से आपने कैलकुलेट करा 1 इंच फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, राइट, फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस टू, लाइक from place A to place B we have 1 inch. Fine, 1 inch. So this 1 inch is equals to 2,000 feet. मीन्स आपने ये 1 इंच जो आपने मैप पे कैलकुलेट करा है, अगर रियलिटी में आप देखो कि वर्ल्ड मतलब जो एक्चुअल में वर्ल्ड में जो इतना प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये 2000 फीट है। सो दिस इज स्केल कि हमने उसको एक्चुअल प्रोपोर्शन में ले लिया कि अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इतना होगा। फाइन, so scale is the ratio between the actual distance of the ground and the distance shown on the map. When the large area like the continents, oceans are to be shown on the paper, we use a small scale. But for example, 5 centimeter on the map shown for the 500 kilometers on the ground, it is called the small scale map. Means जब हमको एक large area शो करना होता है, जैसे हम बहुत बड़ा एरिया ले रहे हैं, लाइक इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, एंटार्क्टिक, अरेबियन सी एंड द नियर ऑल द साउथ इंडियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज इफ यू आर टेकिंग अ पार्ट इन अ पर्टिकुलर मैप, देन फॉर दिस मच लार्ज एरिया वी यूज टू टेक द स्केल फॉर द स्मॉल मीन्स अ लार्ज स्केल, राइट। उस टाइम पे हम स्मॉल स्केल लाइक 5 सेंटीमीटर का हमने 500 किलोमीटर्स हमने बेसिक एग्जांपल देखा, राइट। बट व्हेन द स्मॉल एरियाज लाइक विलेज एंड टाउन इज शोन, मीन्स जब हम एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं, राइट, जब हमने इतना बड़ा लिया तो हमने उस टाइम पे क्या करा, स्केल को और छोटा कर दिया कि हम 5 सेंटीमीटर्स पर हमने 500 किलोमीटर्स लिए हैं, फाइन। बट वैन हमने एक छोटा एरिया लिया, लाइक एक टाउन ले लिया, लाइक हम हमारा सिर्फ हमारे एरिया का जहाँ पे आप जिस सिटी में आप बिलोंग करते हो, फाइन, जैसे लाइक आई एम लिविंग इन द मंदसौर, सो इफ़ अगर मैं सिर्फ मंदसौर का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे उसको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँगा। सो वैन द स्मॉल एरिया लाइक विलेज और द टाउन इज शोन ऑन अ पेपर, then we use a large scale and that is the small large scale, that is a 5 centimeter, and then the map shows the 500 meters. like हमने जब small scale यूज़ करा था तो हमने 5 meters 5 centimeters में ही हमने 500 किलोमीटर्स लिया था। बट अब जब हम लास्ट स्केल पे देख रहे हैं तो हमने क्या करा इसको कि 5 सेंटीमीटर्स का ही हमने 500 मीटर्स ही लिया है, मीन्स उसका बहुत कम, लाइक हमने उसका प्रोपोर्शन मतलब 1 से भी कम ले लिया है, तो हमने इतना उसको स्मॉल, तो वो क्या हो गया हमारा लार्ज स्केल मैप हो गया। So large scale map gives the more information than the small scale map. Obvious the thing is, if अगर मेरे को सिर्फ अपना मंदसौर का मैप बनाना है तो मैं उसके अंदर सारी रोड्स, छोटी छोटी सी रोड्स भी मैं उसके अंदर रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। बट अगर मैं पूरे इंडिया का मैप बना रहा हूँ तो इंडिया के मैप पे जब बात आती है तो मैं मंदसौर सिटी को मेंशन भी नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज
मंदसौर इज सच अ स्मॉल सिटी, राइट, तो हम इसको मेंशन नहीं कर पाएंगे, हम बड़ी बड़ी सिटीज़ मेंशन कर पाएंगे। सो दैट इज़, तो यहाँ पे हम कोई भी रोड्स और कुछ नहीं शो नहीं कर पाएंगे, हम ओनली नेशनल हाईवे से शो कर पाएंगे। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लार्ज स्केल मैप एंड अ स्मॉल स्केल मैप, एंड दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ। व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट, जो डिस्टेंस हमारे इसमें मैप में क्या रोल प्ले करता है। देन मूव टू द नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर मैप इज डायरेक्शन। Obvious the thing is, because without direction you can't make anything. Without, if you are taking our live example of our life, if अगर हमारे पास भी डायरेक्शन नहीं होता है, राइट, इफ़ वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन इन आवर लाइफ, देन हम गुम हो जाएंगे, हमको पता नहीं होगा हम कर क्या रहे हैं। लाइक हमको पढ़ना है, हमको खेलना है, हमको टीवी देखना, और इधर हमको मोबाइल चलाना, हम कुछ भी नहीं जानते। सो इट्स बेटर कि हम उन चीज़ों के लिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जब हम प्लेस पे भी आते हैं, अगर हमको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए हमको किस प्लेस पे जाना है। लाइक कि फर्स्ट में कि द फर्स्ट इज द मोस्ट मैप कंटेन्स द एरो मार्क्स इन अ लेटर एन एट द नॉर्थ राइट हैंड। सो द एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न लाइन। मीन्स अधिक मोस्ट ऑफ द मैप में सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो होता है, दैट इज द नॉर्थ। बिकॉज इफ आपको एक चीज़ पता है, आपको नॉर्थ मालूम होता है, यू नो दैट द साउथ इज अपोजिट टू इट, कि आपको साउथ जो है वो उसका अपोजिट है। इफ देन वी नो दैट द ईस्ट इज ऑन द राइट साइड एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो दिस इज द बेसिक थिंग। हम सबको पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होते हैं, बट इसलिए मैप में सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन के तो टॉप जो हमको ऊपर वाला डायरेक्शन होता है वो हमको मेंशन किया होता है। व्हेन यू नो द नॉर्थ you can find out the other direction. For the example, east west north south, there are the four major directions: north, south, east and west, and they are called the cardinal points. So this is the cardinal points you can find over in this picture, this picture. So this is the west, east, north and south. So this is the basic कार्डिनल पॉइंट्स। हम इन पॉइंट्स को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स है हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड इन्हीं की वजह से हमारे जो अदर बेसिक पॉइंट्स है सच एस नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट हमारे प्रिपेयर होते हैं। इनको याद करना, इनको आपको याद रखना बहुत सिंपल है। हमेशा दो चीज़ें याद रखिएगा, अगर नॉर्थ हमारा जब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है, तो साउथ भी हमारा, उसका अपोजिट भी हमारा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होगा। तो अगर आप नॉर्थ की साइड में देख रहे हो तो नॉर्थ के साइड में नॉर्थ, वेस्ट अगर वेस्ट की साइड में तो नॉर्थ के साथ में वेस्ट ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की साइड में देख रहे हो तो नॉर्थ तो कंपलसरी है, वो तो रहेगा, उसके साथ में आप ईस्ट को ज्वाइन कर दीजिए। सो लाइक द सेम गोज इन द साउथ ऑल्सो, साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट। सो दिस आर द फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. We can locate any place more accurately with the help of the intermediate direction. So the basic cardinal points are east, west, north, south, and intermediate points are intermediate direction. The four intermediate directions are northwest, northeast, southwest, southeast. These are the intermediate points. And for finding the direction in our ancient time, the people have discovered one instrument or invented one instrument, that is the compass. The compass is the instrument which always point towards the north. It will always show you the north. It's the basic, like the compass is an instrument which is used to find out many directions. It's the magnetic needle always point towards the north or the north-south direction. Means the one direction will point towards the north and the other point will be pointing towards the south. So this is the compass. It will always show you the north. So this was the stuff. This was the we have done with our direction and the distance, the two basic components. Now the last is the symbol. This is also the important thing, because अगर मैप में हमको सिम्बॉल्स ही नहीं पता होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी आगे क्या चीज़ आने वाली है, आइदर रेलवे क्रॉसिंग है या आगे आइदर रिवर पास हो रही है, आइदर आगे लेक है, आइदर हमको हॉस्पिटल देखना है, हम वी वांट टू गो टू द हॉस्पिटल बट वी डोंट नो वेयर इज द हॉस्पिटल इज। तो मैप में इन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सिम्बॉल्स ड्रॉ किए गए हैं। वो सिम्बॉल्स हमको ये सारे डायरेक्शंस शो करते हैं। मैंने एक पिक्चर भी आपको नीचे अटैच किया है, जिसके अंदर आपको देख पा रहे होंगे कि रेलवे साइंस के क्या होते हैं, रोड्स के क्या होते हैं, रिवर वेल टैंक के हमारे क्या स्पेसिफिक सिम्बॉल्स बने हुए हैं, टेम्पल्स मॉस चर्च के क्या होते हैं। फाइन, तो ये सारे हमने यहाँ पे
मैंने एक पिक्चर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अटैच किया है. सो लेट्स गो टू द थ्योरी. सो it is not possible to draw a map the accurate shape and the size of the different features such as the building, road, bridge, tree, railway lines and the wells. So they are shown by using the certain letters, shadows, colors, pictures, lines. These symbols give a lot information in the little space. With the use of this symbol, the maps can be drawn easily in a simple way. मीन्स इमेजिन कीजिए ना, अगर मैं आपके सामने एक इंडिया का मैप पूरा ड्रॉ कर दूँ बट मैं वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करूँ, तो वो आपके लिए कोई वर्थ ही नहीं है. अगर आप गूगल मैप्स भी चला रहे हैं बट आप इमेजिन कीजिए गूगल मैप्स में आपको ना कोई रोड शो हो रहा है, नीदर आपको कोई रिवर शो हो रही है, नीदर रेलवे क्रॉसिंग, नीदर लैक्स, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, नीदर हॉस्पिटल्स, नथिंग इज देयर. सो वो मैप आपके कोई काम का है क्या? दैट इज़ ऑफ द नो यूज़. बिकॉज आप मैप में क्या देखते हो? मैप में आप एक प्लेस पे जाने के लिए वे देखते हो. आइदर आप रिवर देखोगे, आइदर आप रेलवे क्रॉसिंग देखोगे, अगर आप अपना सूटेबल वे डिसाइड करोगे, इधर आपको हॉस्पिटल जाना तो आप वो चेक करोगे. बट अगर वो कुछ भी उसमें शो ही नहीं हो रहा है तो दैट मैप इज ऑफ नो यूज़. सो इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द एरिया, यस, एंड देयरफॉर anyone cannot ask someone for the direction, then you can collect the information with the map with the help of the symbols. If आप ऐसी प्लेस पे, लाइक हम नॉर्थ इंडियंस है राइट, बट अगर हम बाई चांस हम साउथ इंडिया में जाते हैं, फाइन, तो साउथ इंडिया में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती है लाइक दैट आर लाइक मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड ऑल. वी आर नॉट एट अवेयर ऑफ कि व्हाट आर दोज लैंग्वेज. हमको ना बोलना आती है ना समझ में आता है. हम उस टाइम पे क्या करेंगे? एट दैट टाइम अगर हमारे पास मैप है तो दैट विल बी मोर सूटेबल फॉर अस, ताकि हम अपने डायरेक्शन अपने आप खुद डिस्कवर कर पाएँ. नीदर वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर होगा, नथिंग, बिकॉज जो सिम्बॉल्स होंगे वो यूनिवर्सल सिम्बॉल्स होंगे, वो सेम होंगे हर जगह के लिए. So that's why the maps are quite interesting thing, right? The maps have a universal language, that is the symbol, that can be understood by all. This international agreement regarding the use of the symbol is called conventional symbols. So the international agreements regarding the symbols means जो इन symbols के regarding internationally सारी countries ने agree करा था कि हाँ these are the basic symbols we are going to use. So ये जो symbols है इनके रिगार्डिंग जो इन सिम्बॉल्स को जो एग्रीमेंट जो पास हुआ था उसको बोला था हमने कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. फाइन. सो टिल नाउ वी आर डन विद आवर टाइप्स ऑफ मैप एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैप. देन देयर आर टू बेसिक टॉपिक्स विच आर यूजुअली नोन टू अस, दैट इज द वन इज द स्केच एंड द नेक्स्ट इज द प्लेन. तो फर्स्ट वी गो टू द स्केच. A sketch is a drawing mainly based on the memory, spot observation, not on a scale. Something, a rough drawing is required on the area to tell where the particular place is located. Well, with the representing of the other place, suppose you want to go to our friend's house but you don't know the way. आप सबने एक सिचुएशन फेस करी होगी ना बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी. हम ये हरकत हमेशा, मतलब ये जो हमारी हैबिट होती है ना, हम करते हैं. लाइक कैसे? आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि मेरा घर बताओ, तो आप कैसे करोगे? आप उसको समझाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा, तो देन आप ऐसे कॉपी में पीछे पेन निकालोगे, आप बताओगे कि ये शॉप देखी है ना देने, हाँ, तो इस शॉप पे आना, इस शॉप से ऐसे आगे रोड जाएगा, एक गली इधर जाती है, द वन वे इज़ दिस, द वन इज़ दिस एंड द वन इज़ दिस. देन आपको इस गली में अंदर आना है, इस गली में इस जगह पे आप ऐसे गली में आ जाओगे, द लास्ट पॉइंट में मेरा घर आपको दिखेगा, राइट. तो वो क्या होता है? दैट इज़ कि वो जो मैप है वो क्या होता है? वो स्केच होता है. दैट इज़ नॉट अ मैप, वी कॉल इट स्केच. मीन्स वहाँ पे हमने हमारी मेमोरी से एक चीज़ बनाई है और वो उस पर कोई भी स्केल नहीं है. मीन्स हम उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे मैप्स में कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर्स पे 500 किलोमीटर्स हो जाएंगे. वो एक बेसिक मेमोरीज पे हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फाइन, इस पिक्चर में कि दिस इज़ अ मैप बट दिस इज़ अ स्केच ऑफ दिस सेम मैप. इसी मैप का ये एक स्केच बना हुआ है, फाइन. So this is the basic difference between the map and a sketch. So let's move ahead with our next and the last topic, that is the plane. So the picture you are shown in the slide is a map, or sorry, it's a plan of what? The plan of a school. Fine. ये मैंने एक स्कूल का एक रफ फोटो लिया है. The plan is drawn on a small area of a large scale. The plan scale gives a lot of information, but there are certain things which we may not sometimes want to, for example the length and the breadth of the room, which cannot be shown in the map. At that same time we refers to the drawing of this. So
प्लान क्या होता है? बेसिकली हमारे घर का जब इमेजिन कीजिए आपका घर हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर आप शॉप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, इधर आप बिजनेस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो आप उसका एक बेसिक आर्किटेक्ट से इंजीनियर से एक बेसिक प्लान ड्रॉ करवाते हो, राइट? तो वो जो मैप होता है वो एक स्मॉल एरिया का होता है, बट एक लार्ज स्केल पे हम बनवा के लाते हैं, राइट? एक छोटी सी जगह का हम लोग बहुत बड़ा मैप बनाते हैं, उसके अंदर सब कुछ हम मेंशन करते हैं। जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे स्टेयर केस शो करा है, हमने लॉबी शो करा है, उसके बाद हमने हॉल शो करा है, देन वी हैव द ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, दिस आर द क्लासरूम्स, देन वी हैव स्कूल इंफॉर्मेसी, हमने सब कुछ इसके अंदर शो किया, राइट? तो ये क्या है, हमने हमारा एक छोटे से स्कूल का हमने मैप ड्रॉ करा है, राइट? तो दिस विद दिस थिंग, दिस इज नॉट, वी कॉल इट अ मैप, नॉट अ मैप, वी कॉल इट अ प्लान। सो दिस इज द प्लान। सो नाउ आई थिंक वी ऑल गॉट। इसका अगर आप एक डिफरेंस भी देखना चाहते हैं तो हम ऑलमोस्ट जब भी हम किसी मॉल्स में जाते हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी सी शॉप में जाते हैं, लाइक अगर हम विशाल में जाते हैं, किसी मॉल में ITI में या फिर C21, कहीं पे भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक बेसिक मैप उनके एरिया में लगा हुआ होता है कि पूरी जो हमारा पूरी बिल्डिंग है वो इस टाइप से कंस्ट्रक्टेड है। वो बेसिक जो प्लान होता है ना, वो प्लान इसलिए लगाया जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप कहीं फंस जाते हैं या फिर फायर एग्जिट की आपको ज़रूरत है, तो आप इस प्लान में देख के आप निकल सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि फायर एग्जिट कहाँ से है, ताकि आपको कोई डैमेज नहीं हो और आप प्रॉपरली बाहर आ पाएँ। सो दैट्स वाई, तो टिल नाउ हमने जो अभी तक देखा है, हमने मैप देखा, व्हाट वाज द मैप, what was the basic types of map. We have three types of the map: the thermal, the political, and the physical map. Then we saw the basic components of the map. We have three basic components of the map, that is the distance, direction, and the symbol. Then we see the two different kinds of things, that is the first one is the sketch, that is the thing which we'll draw from our memory, right? And the next is the plan, that the plan which we draw of a small scale, the small area in a large scale. Fine. So thank you for being with us, stay connected, and I request you to please subscribe the channel as soon as you can, because by subscribing the channel, आपको जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. So fine, thank you and stay connected.